So today we are going to know about CAA. What is the full form? Citizenship Amendment Act. Earlier it was a bill when it was not passed. The very first time it was put in Lok Sabha in 2016 and it couldn't get passed. Later when it passed, it became the Act, and especially 2019 is known to us. It is very requisite and important point if we are going to know the rules, regulations, and in detail what is it, what formulas and formats. Recently you have enjoyed and listened all the points by these students. So this formats all the system of citizenship here. It is known to the world India is Vasudhaiva Kutumbakam. India believes in it. So anybody can come and live here. There is no bar. But today we are going to talk about America, Canada, Australia. Why don't we talk about India? Because India is completely free to live for anybody. If legally you are coming from any country, you can enter here without visa. You know visa? Yes. It is a process, on paper process, by which you take permission to enter in any country. But in India, you can come anytime. On the other hand, if you have to go to any of the country, even like Saudi, Dubai, Oman, Muscat, Tehran, America, Canada, Australia, you have to apply 90 days earlier, an application online, and there will be a kind of interview of yours. When you qualify the interview and you explain the reason well, and if the person, the authority is satisfied with that, only then you will be provided visa with some payment. You have to pay something for that. But on the other hand, if you talk about India, anybody can come. Put in a request, no need of request. You take a ticket and you can come directly for a while. Some questions you can enter it. So this is the legal process. But what about illegal process? As you may have listened or you may have seen in some movies that so many people from other countries have crossed and entered in India illegally. If you are going to find out on YouTube, you will see there's a kind of shifting on the border side. And perhaps some of you may have seen there's a kind of pendulum, you see, like a balance, that on one side of a bamboo there's a cow, on one side of bamboo there's a man. So by throwing the cow, the man will come this side and cow will go that side. And again the same process will be repeated. Once you entered here, it is seen and found till now that it is very easy in India to prepare your Aadhaar card, PAN card, passport, visa and all, because some of the infiltration in our system. Although government is working very hard to better it, but yet we could see more than crores illegal immigrants have come in India. Now, how does it cost a big difference in your day-to-day life, in your family, in your economy, in your country, all of these segments? So, viewing all this CAA has been enacted, and recently it is announced as it is in force now. So those immigrants who have come before 2014, if they are from Hindu community, they will be provided help and citizenship in spite of asking several questions. But there is a big question on this act, that why our Muslim brothers or families are not allowed in this act. This is a question which is creating turmoil and big confusion in our youngsters, in all of the Indian mind. But if we go to understand the real process, we can easily find out what is it. So I would like to let you know using some of the Hindi points so that you can put it in your mind and you will understand it. A very beautiful assignment is here made by Ikra,
I would like to add in my speech. Can you zoom in? It says Citizenship Amendment Act or CA in shortcut. How is the act related to religion? Simply you see, do you have valid documents? If you have entered in India, do you have valid documents? Yes? Okay, no issue. You can leave. But no, are you from Pakistan, Bangladesh or Afghanistan? Yes? So you will be asked, when did you come to India? You have to detail all this process. No, sorry, get back to your country. How beautifully it is explained here. Now again the question is, yes, when did you come to India? Before 2014 or after 2014? Sorry, I came after 2014. Sorry, you can't leave, get back. Oh yeah, were you persecuted for your religion? Yes? Okay, you are safe, you can stay down. No, sorry, you can get back. So step by step you are told where you can leave, you cannot leave. Again the question, the big question raised here, why not Muslim brothers and sisters allowed? Do you have this question in your mind? How many of you having this? कितने लोगों का क्वेश्चन है कि सीए में ये फॉर्मेट क्यों नहीं है कि मुस्लिम फैमिलीज मुस्लिम ब्रदर्स क्यों नहीं रह सकते? कितने लोगों का क्वेश्चन ये जिज्ञासा है जानने की? ऑफ कोर्स क्वेश्चन है ऐसा क्यों हुआ? सो वी हैव टू नो अबाउट इट. और अगर हम चीजों को समझेंगे जानेंगे, वी कैन इजीली रिप्लाई, वी कैन इजीली एक्ट ऑन. तो आपको ये जानना है क्यों ऐसा किया गया. द बिग क्वेश्चन इज कि जिस कंट्रीज की बात हो रही है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों कंट्रीज कौन सी कंट्रीज हैं? मुस्लिम कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्रीज है. तो जब हम उस कंट्री में ऑलरेडी रह रहे हैं, वहां की सिटीजनशिप है हमारे पास, तो हमें आवश्यकता क्या है आने की? यस नो? आवश्यकता किसको है? जैसे मान लीजिए 5 भाई हैं, 4 या 5 भाई बहन हैं, 5 में 3 के पास मकान है, 2 के पास मकान नहीं है, किसको देना पसंद करेंगे? जिसके पास नहीं है. ऑब्वियस जिसके पास नहीं है. तो जो लोग वहां पे प्रताड़ित हो रहे हैं किसी रीजन से, किसी रीजन से, कोई भी समस्या ऐसी है, तो उन लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट लेटर भेजा इंडिया को. और रिसेंटली अभी तो काफी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी आए कि हम लोग यहाँ सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं या प्रॉब्लम्स हो रही है. तो इन द व्यू टू दैट इंडिविजुअल्स ये फॉर्मेट निकाला गया कि उनकी मदद के लिए हम क्या ही कर सकते हैं. अगर आप जाएं और थ्योरेटिकली एज वेल एज वीडियोग्राफी के थ्रू आप रीड आउट करेंगे तो आप देखेंगे क्या सिचुएशन चल रही है. एंड वी आर वेरी हैप्पी, परहैप्स you should be very happy. We are living in India, one of the most beautiful place of the country. Why? Because here you are given right to speak. You are given fundamental rights. If you are really willing to know and favoring it, you must know about all other countries. उन countries के बारे में भी आप जाने जहाँ पे rights नहीं है. If you talk about China, you can't use Google, Facebook, any other social sites as well. आप खड़े होके अपने वहाँ के राष्ट्रपति आदरणीय सी जिनपिंग के बारे में कुछ कह नहीं सकते. कहेंगे तो अगले दिन आप जेल में या कब्रगाह में भी पाए जा सकते. तो ये क्या है? ये दिस इज अ काइंड ऑफ डेस्पोटिक रूलिंग, ये तानाशाही. और तो और वो यदि आप वहां पे मुस्लिम कैटेगरी से हैं, उइगर मुसलमानों को 2 से 3 लाख लोगों को बंधक बना के आज भी रखा गया प्रेजेंट टाइम का. और उसके न्यूज फ्लैश नहीं होते क्योंकि उनका पूरा सिस्टम जो है वो सेपरेट है. वो अपने इनसाइड स्टोरी को कभी भी मीडिया में नहीं आने देते. तो जब आप जानेंगे नहीं तो इन चीजों को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो यहां से आप निकलते हैं. अच्छा, रूस एक बहुत अच्छा देश है. रूस, रसिया सुंदरता के लिए जाना जाता है. वहां पे भी ये बाउंड है कि आप गूगल, विकिपीडिया, कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज एक्सेस नहीं कर सकते. तो आप आज इंडिया में बैठे और आप दुनिया के किसी भी कंट्री को एक्सेस कर सकते हैं. अगर 2 घंटे के लिए गूगल, 2 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद की जाती है तो शोर हुआ अल्लाह मच जाता है. There is a big uproar and hullabaloo to stop it. और वहां जहां पे ये लाइफ टाइम बैन है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? So if you know about such places, we feel that yes, how happy we are, how fruitful we are, how lucky we are that we have got a country like India where we can live, stay, unity in diversity.
these are very important aspects. तब आप बताएं कि जब ये फॉर्मेट बना कि ऑलरेडी जो कंट्री मुस्लिम कंट्रीज हैं तो वहाँ मेंबरशिप और सिटीजनशिप ऑलरेडी है, तो वहाँ से यहाँ आने का कोई बहुत विशेष प्रावधान नहीं बनता है, कोई विशेष रीजन नहीं बनता। और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके पूरे वर्ल्ड में 49 मुस्लिम कंट्रीज हैं, और उन कंट्रीज में हम क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एग्जाम्पल दें, हम क्यों नहीं सऊदीया का, दुबई का, ओमान का नाम लें, जहां आज भी पर कैपिटा इनकम इंडिया से 100 गुना ज्यादा है। अगर आप वहां के डॉलर, पाउंड या जो भी वहां की करेंसी है उसके बारे में बात करें तो आपको दिरहम का नाम आएगा, जो दिरहम आज सबसे भारी है। डॉलर के ऊपर भी मुझे लगता है उसकी कॉस्ट वैल्यू होगी। कितना है दिरहम का प्राइस? मैक्सिमम 30 रुपए। चेक आउट परहैप्स सम ऑफ द dinar is heavier than dollar, right? तो आज अगर हम उन चीजों को भी रिव्यू दें तो हम वहां से ये सीख सकते हैं कि वो कंट्रीज आज इस लेवल पे कैसे पहुंची, क्योंकि उन्होंने अपनी कमियों पे वर्क किया है, उन्होंने कभी दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदा है। और आज आप दुबई में अगर सुनने जाए तो हबीबी कम टू दुबई का स्टेटमेंट सबसे पहले आपके सामने आता है, बुर्ज खलीफा का नाम आपके सामने आता है। क्यों नहीं, ऐसे किसी भी बड़े सेगमेंट का नाम इन कंट्रीज में आता है जिनके लोगों को परमिशन दिया गया। रीजन ये है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, जब हम आगे बढ़ने की बात करेंगे तो सबसे पहले सऊदी अरब का नाम सामने आएगा। सऊदी अरब में कंप्लीटली केवल और केवल रेत थी, है बट मैं कह सकता हूं थी, वहां जीने खाने पीने की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। बस उस कंट्री ने अपने को इम्प्लीमेंट किया, एक कॉन्फ़िगरेशन किया, ड्राफ्टिंग करी कि मेरे कंट्री में क्या है, तो तेल है, अच्छा, और दूसरे किन किन कंट्रीज में तेल नहीं है, अच्छा यहाँ नहीं है, चलो उनको तेल बेचते हैं, तो उनको तेल बेच दिया। पैसा मिला तो क्या किए, खा पी के ऐश किए नहीं, उन्होंने कंट्री को डेवलप किया। और आज के डेट में आप सऊदीया जाएं, दुबई जाएं, तेहरान जाएं, तो इन जगहों पे आपको लेवल दिखता है, लाइफ दिखती है। वर्ल्ड लेवल पे सिंगापुर को डेवलप किया गया, और आज सिंगापुर से जो भी इंटरनेशनल मार्केट है उसमें काफी मार्केट शिफ्ट हो रहे हैं दुबई में, कॉर्पोरेट ऑफिस मिल रही है, मौका मिल रहा है वहां जाने का। और तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली राखी सावंत जी गई थी दुबई, और एक शेख से उन्होंने कहा कि मुझे गोल्डन वीजा दे दीजिए, वो हंसने लगे और नहीं दिया उन्होंने। आप सोचिए कि उस कंट्री की सिटीजनशिप लेने का आज के लोग परेशान है कि हम ले लें किसी तरह, और जहां आपको मिला हुआ आप उसकी कदर नहीं करेंगे। तो वहां अगर आपको गोल्डन सिटीजनशिप मिलता है तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जमीनें खरीद सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो इंडिया में ये सुविधा सबको मिली हुई है, बट अदर कंट्रीज ने अपने सारे सिस्टम को बिल्कुल लॉक करके रखा है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जिसके नतीजे के रूप में आज आप उस कंट्रीज को घूमने जाते हैं। अगर आप बात करें इंडिया का, तो इंडिया का विभाजन 1947 के बाद तो कोई कंट्री अलग नहीं हुई, बट 1947 के पहले जब ब्रिटिश रूलिंग थी और पहले से भी, तो केवल इंडिया से लगभग 24 कंट्रीज, नंबर ऑफ कंट्रीज 24 कंट्रीज पार्ट हुए हैं, जिसमें 7 आपको याद है। यहाँ ये क्या बता रहा है कि एक परिवार है, आप ही अपने परिवार के बारे में सोचें, तो वहां से पार्टीशन होता है, रूप बदलता जाता है। तो वो पार्टीशन, वो स्वरूप बदला, और आज के डेट में आप 24 कंट्रीज के नाम से जाने जा रहे हैं। तो आज आपको एक मौका मिला है उन सभी मिस्टेक्स को इंप्रूव करने का, डे बाय डे इंप्लीमेंट करने का, कि सीए के थ्रू पहले हम अपनी कंट्री को कंप्लीटली बॉर्डर्ड करें, एक लिमिटेड एडिशन में जो भी हमारे रेसिडेंट हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने लोग हैं, सबको एक सेफ जोन में लाएं पहले, फिर हम एनआरसी पे वर्क करें। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक जो आएगा वो एनआरसी होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआरसी? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। क्योंकि क्या है कि अभी मैंने रिसेंटली शेयर किया कि यहाँ पे आके इजीली आप अपना डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हो। यस तो शायद एक न्यूज आया था और आप लोग नहीं जाने थे, नहीं सुने थे।
और मुझे लगता है कि याद भी नहीं होगा आपको। ओसामा बिन लादेन का नाम सुना है? Yes, sir. मर गए? Yes. वर्ल्ड के सबसे बड़े टेररिस्ट थे और उनके फैमिली मेंबर का ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया देवरिया ARTO से बना था, ऐसा न्यूज फ्लैश हुआ था। अब सोचे कि किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि अगर एक व्यक्ति कहीं धूमिल दूसरित है, ब्लेम्ड है, तो उसे कंप्लीट फ्रेटर्निटी को क्वेश्चन मार्क लगता है। तो जब ये चीजें बाउंड होंगी, सिस्टमेटिक होंगी, तो आने वाले समय में हमारा ग्रोथ सुनिश्चित होगा। आज आप देवरिया में, आज आप इंडिया में कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हो, आप फ्री हो। अभी आर्टिकल 370 आपका इंप्रूव हुआ जम्मू में, तो आप देवरिया से उठ के जम्मू में जाके जमीन खरीद के होटल बना सकते हो। आप पहले ऐसा नहीं कर सकते। आज आपके इंडिया का जो स्वर्ग माना जाता है जम्मू, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। टेररिज्म की एक कहानी वहां रची गई और आज वहां जाके आप विजिट करो, 1000 करोड़ का आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये क्या कहानी बता रही है? आपके आदरणीय मोदी जी ने एक इम्पैक्ट डाला कि नहीं, हम भारत की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे एक लिमिटेड टाइम में। तो कहीं ना कहीं उसकी ये आधारशिला है कि जब हम इंटरनली मजबूत होंगे तभी हम एक्सटर्नली वर्क कर पाएंगे। And the view to that, this is very, very important aspect and procedure. So, this is end up my point and topic. If you have some queries regarding this, you can ask one by one.